بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول کا عنوان ہے بیلی راجپوتان کی ملکہ۔ اس کی قسط نمبر 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو پر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ رات کا دوسرا پہر دم توڑنے کو تھا۔ سیاہ آسمان پر ہر سو تارے بکھرے تھے۔ پورے چاند کی روشنی درختوں کے پتوں کو چمکا رہی تھی۔ وہ بیلی کے جنگل کے درخت تھے، اونچے مضبوط تناور اور اتنے گھنے کہ چاندنی گھاس کو نہیں چھو پاتی تھی۔ ان اونچے درختوں کے سائے جنگل کے بیچ بنی شاہراہ پر لمبے گر رہے تھے۔ ایسے میں جب جانور بھی خاموش ہو گئے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ دونوں طرف سے جنگل کے بیچ گری کچی پکی سڑک پر ایک بگھی دوڑتی آ رہی تھی۔ بگھی ساگوان کی تھی۔ اس پر 2 رویہ، ایک مہتابی روشن تھی اور اس میں 2 عربی گھوڑے جتے ہوئے تھے، چکنے چکنے سفید گھوڑے۔ ان کے منہ پر ریشمی پونیاں اور بدن پر چم کرتی جھالر کی دھجیاں تھیں۔ باہری نشست پہ کوچبان بیٹھا تھا، جس کے ایک ہاتھ میں ایک چابک اور دوسرے میں مرصع لگام تھی۔ وہ لگام تھامے چابک مارتا فکر مندی سے بار بار اوپر آسمان کو دیکھتا تھا، جہاں صبح کا ستارہ اسے منزل بتا رہا تھا۔ کوچبان کے پیچھے بگھی کے اونچے دروازے سختی سے بند تھے۔ جنگل کے درخت اسے دیکھ رہے تھے، مگر کچھ اندازہ نہ ہوتا تھا کہ کوچبان کی سواری کون ہے یا کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ بگھی برق رفتاری سے جنگل کے بیچوں بیچ سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی۔ کوچبان پریشانی سے گردن اٹھا کر وقفے وقفے سے صبح کے ستارے کو دیکھتا تھا اور ذرا کہ ذرا پیچھے بند بگھی پر نظر ڈالتا۔ اس کے ہاتھوں میں اضطراب تھا اور انداز میں عجلت۔ رام ناتھ! دفعتاً بند بگھی سے نسوانی آواز گونجی، ٹھہری ہوئی، مطمئن سی مگر تمکنت سے بھرپور۔ کوچبان کی لگام پہ گرفت پل بھر کو ڈھیلی پڑ گئی۔ بگھی کے پہیے قدرے سست ہوئے۔ جی مالکن! بیلی کتنی دور ہے ابھی؟ بس چند کوس رہ گئے ہیں مالکن۔ بھگوان نے چاہا تو صبح ہونے سے قبل ہم حویلی میں ہوں گے، کہہ کر اس نے چابک زور سے گھوڑے کو رسید کی۔ پہیے پھر سے تیز ہو گئے۔ جلدی کرو رام ناتھ! نزاکت اور تھکان بھری خوبصورت آواز پھر سے اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ جی مالکن کہہ کر رفتار بڑھانے لگا۔ بند بگھی میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اب وہ نہیں بولے گی۔ کوچبان کو علم تھا۔ یہ چند فقرے بھی پورے سفر میں پہلی بار اس کے لبوں سے نکلے تھے۔ کوچبان رام ناتھ ابھی صبح کے ستارے کو دیکھ کر سن کا حساب ہی لگا رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل سے چند گھڑ سوار نکل کر سامنے سڑک پر آ گئے۔ ایسے کہ بگھی کا راستہ ایک دم سے رک گیا۔ گھوڑے زور سے ہن آئے۔ رام ناتھ نے تیزی سے لگام کھینچ لی۔ اسے لگام کھینچنا ہی تھا کیونکہ اب وہ ہو چکا تھا، جس کے باعث وہ رات کے وقت جنگل کے سفر سے ڈرتا تھا۔ بیلی کا جنگل رات کے اس پہر ہنڈاروں کی اماں جگہ ہوتا تھا۔ اسے علم تھا۔ اس نے بے اختیار ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ بگھی رکی کھڑی تھی۔ سامنے 4 گھوڑے تھے۔ ان میں سے 3 کے سوار گھوڑوں سے اتر کر بگھی کے قریب آ رہے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں بندوق تھی، دوسرا برچھید تھا، جبکہ تیسرے کے پاس بڑا سا چپوتی بلم تھا۔ چوتھا گھوڑا قدرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کا سوار گھوڑے کی پشت پر بیٹھا تھا۔ وہ نیچے نہیں اترا تھا۔ اس کے منہ پر سیاہ اوڑھنا بندھا تھا، بس آنکھیں واضح تھیں، باقی چہرہ ڈھانٹے کے پیچھے گم تھا۔ اس کے پاس ایک بڑا سا نیزہ تھا جو اس نے گھوڑے کی کنوتیوں کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ تینوں سوار بگھی کے قریب آئے۔ ان کے چہرے بھی نقاب سے ڈھکے ہوئے تھے۔ برچھید کے دوسرے ہاتھ میں دستی تھی۔ یہ چھوٹی سی لکڑی تھی جس کے اوپر دھات کا بڑا سا پیالہ جڑا تھا۔ اس کے اندر شعلہ جل رہا تھا۔ برچھید نے دستی کوچبان کے چہرے کے سامنے لہرائی۔ ایک دم روشنی سے گھبرا کر کوچبان نے چہرہ پیچھے کیا۔ بندوق برابر آگے بڑھی۔ نیچے آؤ! اس کے بندوق کوچبان پر تنی تھی۔ وہ خاموشی سے نیچے اتر آیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ امرتسر سے مہاراج۔ رام ناتھ نے ہاتھ عاجزانہ انداز میں جوڑے۔ کہاں جانا ہے؟ گاؤں جا رہے ہیں مہاراج۔ کون سے گاؤں؟
बेली राजपूतान। महाराज, बेली में क्या काम है? बंदूक बलदार गुर्राया। अपना घर है महाराज, परिवार है। बंदूक बलदार ने बग्घी पर निगाह डाली। साथ कौन है? रामनाथ ने थूक निकला। मेरी पत्नी है महाराज। अमृतसर क्यों गए थे? वो सवाल दर सवाल किए जा रहा था। मेरी पत्नी बीमार है, इसे बड़े अस्पताल दिखाने ले गया था। पच्छे दस्ती ऊंची किए बग्घी को बगौर देख रहा था। एकदम चूक उठा। ये बग्घी तो राजपूतों की है। फिर इसने शोले का रुख रामनाथ की जानिब किया। तुम ठाकुर रघुनाथ के मुलाजिम हो? वो जो समझा था कि गुलो खलासी हो गई, गड़बड़ा कर रह गया। जी जी महाराज, इसका मतलब है ये गांव का आदमी है। बरमबरदार ने आहिस्ता से दोनों से कहा, जैसे मुतमईन हो। मगर बच्चीत मुतमईन नहीं था। तो अपनी बीवी को ठाकुरों की बग्घी में क्यों ले जा रहे हो? वो महाराज, दरअसल रामनाथ ने बात नहीं बन रही थी। देखो, सी तरह बताओ, साथ कौन है? तुम्हारी बीवी है, ठाकुरों का कोई फरंगी मेहमान? चौथा घुड़सवार इसी तरह नेजा रखे सारा माजरा खामोशी से देख रहा था। महाराज, दरअसल वो इससे पहले कि वो बिगड़ी को संवारने की सही करता, बग्घी के अंदर से आवाज़ उभरी, रामनाथ। फजा में जल तरंग से बज उठे हों। कोजबान ने थक कर सर झुका दिया। अब झूठ से काम नहीं चलना था। जी मालकिन। इसके आवाज़ पस्त थी। मालकिन के लफ्ज़ पर तीनों ने एक दूसरे को मानी खेज अंदाज में देखा। फिर बंदूक बलदार ने गर्दन मोड़कर घुड़सवार को इशारा किया। इसने इस बात में सर हिलाया। बंदूक बलदार ने जवाबन बंदूक मजीद तान ली। कौन लोग हैं? रामनाथ। राहगीर हैं, ये कंपनी बहादुर के सिपाही। आवाज़ अब भी बेनियाज सी थी, मुतमईन और ठहरी हुई, बेफिक्र सी। राहजन है मालकिन। वो बग्घी के करीब होकर होले से बोला। फिर इनकी जानिब मुड़ा। पर्दे की बीबी है महाराज, हमें जाने दीजिए, हमारा बेली पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पर्दे की बीबी रात के इस पहर तुम्हारे साथ क्यों है गाड़ीबान? बंदूक बलदार के लहजे में तंज दर आया था। बलशीत ने बेकदरे चौकन ना होकर बच्ची का रुख रामनाथ की तरफ कर लिया। चौथा सवार इसी तरह खामोशी से घोड़े की लगाम थामे इसकी पीठ पर बैठा था। महाराज, हमारा बेली पहुंचना, ये क्या पूछ रहे हैं रामनाथ? बंद दरवाजे के पीछे से फिर से आवाज़ उभरी, जैसे वीराने में किसी कदीम मंदिर की सारी घंटियां बज उठी हों। ये पूछते हैं कि रामनाथ बग्घी के करीब आया। ये अंदर फरंगी तो नहीं है। आप इत्मीनान रखें मालकन, ये बेली राजपूतान के डाकू हैं, सिर्फ फरंगियों को लूटते हैं। मैं इनसे निमट लूँगा। ढके छुपे अल्फाज में निहायत अदब से अपनी सवारी को खामोश रहने का कहकर वो राहजनों की जानिब मुतवज्जा हुआ। माई बाप, इसने लखनऊ के बासियों की तरह आजाना हाथ जोड़े। बीबी साहब की बोली है। वो जाने कौन सा हुआ बहाना घड़ने को था कि आवाज़ फिर से गूंजी। रामनाथ, अब के लहजा सख्त था, तहकुम और रौनक से भरपूर। इन्हें बताओ कि तुम्हारी सवारी फरंगी ही है। इससे पहले के कोचबान, जो अपने कदमों पे कुल्हाड़ी मारने वाले अल्फाज पे मुचक्का रह गया था, वो तीनों राहसन जिनके लिए ये बहादुरी गैर मुतवक्का थी, संभलते बग्घी का दरवाज़ा अंदर से खुला। सबकी निगाहें इधर को उठी। दरवाज़ा खुलता चला गया और इसके पीछे कम ख्वाब का भारी पर्दा पड़ा था। एक सफ़ेद हाथ बाहर निकला और पर्दा हटा दिया। बलशीत की दस्ती का शोला हवा से धंवासा जा रहा था, मगर मध्यम रोशनी में भी अंदर का मंजर कदरे वाज़ेह था। वो अंदर नशिस्त पर बैठी थी, यूं के रुख सामने को था। इसने सफ़ेद मैक्सी जेब तन कर रखी थी, जो पाँव तक आती थी। पाँव में नाजुक सी कोल्हापुरी जूती थी, जिसके ऊपर सुनहरे पुखराज जड़े थे। मैक्सी की चौड़ी दार तंग आस्तीनें कलाइयों तक आती थी। इसके सफ़ेद हाथ गोद में धरे थे और इनमें हीरे की अंगूठियाँ थीं। हाथों के नीचे एक बड़ा सा सफ़ेद हैट रखा था। लिबास का घाट खुला था। गर्दन राजहंस की सी लंबी थी, जिससे हीरो का एक नाजुक हार चिपका था। राजन की निगाहें बेख्तियार इसके पाँव से होती चेहरे पर उठती चली गईं। उठी हुई थोड़ी मगरूर सी नाक, मोम की सी गोरी जिल्द, भरे भरे होठ जिन पर सुर्खी लगी थी, सुनहरी माइल भूरे बाल इसने इकट्ठे करके बाएं कंधे पर डाल रखे थे, जो इनकी निगाह से पोशीदा थे कि इनके सामने इनका दाना रुख था, और बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें
जिनके गिर्द बहुत गहरे काजल का हाशिया खींचा था। आंखों का रंग बहुत चमकीला, सुनहरी और काजल इतना गहरा था जैसे सियाह पानी में सूरज झिलमिला रहा हो। रोबे हुस्न था या तमन्नते जमाल के असले पे इन तीनों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। शायद एक लम्हे को इनको हकीकत में ख्वाब का गुमान हुआ था, जैसे आसमान से उतर कर कोई अप्सरा इनके सामने आ गई हो। राम नाथ, इनसे पूछो कि रात के इस पहर मुसाफिरों को अज़ियत देने से क्या हासिल। हल्के से गर्दन इनकी जानिब मोड़े और नख़वत से बोली, गाड़ी बांध, अपनी मेम साहब को कहो अपना जेवर उतार कर हमारे हवाले कर दें। बंदूक बरदार संभल चुका था। रामनाथ ने बेचारगी बेबसी से बग्घी के खुले दरवाजे को देखा। वो इसी एतमाद और तहक़ीक़ से उनको देख रही थी। बंदूक बरदार को बात दोहरानी पड़ी, मेम साहब अपना जेवर उतार कर हमारे हवाले कर दें। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। इसके एतमाद में रद्दी बराबर फ़र्क नहीं पड़ा था। ना ही मैं भीख देने की कायल हूँ। हम भिखारी नहीं हैं। बदचित गुर्राया, भिखारी और डाकू में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। रही जेवर की बात तो मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी। मादाम आपका लहजा हमें मजबूर कर रहा है कि हम आपके साथ ज़बरदस्ती करें। इसकी सुनहरी आंखों में नागवारी दर आई, खूबसूरत पेशानी पर शिकन उभरी। अगर मलका आलिया से बगावत हुए अहले हिंद अंग्रेज़ी शुफ़ा की औरतों का एहतराम भूल गए हैं तो रामनाथ इन्हें बताओ कि यहाँ महकूम हैं और हम हाकिम। ना हम महकूम हैं और ना ही आप हाकिम। आप गासिब, चोर और अहश-शिकन हैं। आपने हमारे हिंद अजीम को लूटा है, हमारा माल, हमारी इज़्ज़तें, हमारा तख्त व ताज लूटा है। हम सिर्फ आपसे अपनी दौलत वापस ले रहे हैं। इज़्ज़त और सल्तनत का हिसाब फिर कभी लेंगे। जेवर उतार कर हमारे हवाले कर दें मेम साहब। इसने बंदूक फिर ऊंची की। मुंह पे बंदे ढाटे से महज इसकी आंखें वाज़े थीं, छोटी छोटी अहले फरंग के लिए नफरत से लबरेज आंखें। चौथा घुड़सवार खामोशी से सारा तमाशा देख रहा था। मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मुझे भीख देने की आदत है, न लूट ले जाना पसंद है। आदत तन व गर्दन से चिपके हार पे उंगलियां फेरने लगी। फरामोश कर दो कि तुम मुझसे मेरा जेवर उतरवाना तो क्या, इस बग्घी के चंद कदम करीब भी भटक सकते हो। अब इसके लहजे में हकारत दर आई थी। हम ये दोनों काम कर सकते हैं, गोली भी चला सकते हैं। फजूल, इस देवी जैसी हुस्न तमकनत रखने वाली लड़की ने तमस्खराना सर झटका। खुशफहमी इंसान को बहुत जलील करवाती हैं। कहते कहते इसने यूं ही एक हाथ से बाल समेट कर दाएं कंधे पर डाल दिए जो इनके सामने था। इस अमल के दौरान जब वो पूरे सुनहरी बालों को हाथ से समेटे दूसरे शाने पर ला रही थी, दस्ती का शोला और चांद की रोशनी बाहम होकर खास जाविये से इस पर पड़ी। एक लम्हे को इसके बालों में कुछ जोर का चमका, इतना कि चमक से दूर घोड़े पर बैठे सवार की आंखें चुंधिया गईं और बेख्तियार इसने रोशनी से बचने को सर पीछे किया। बस एक लम्हे का अमल था, फिर रोशनी गायब हो गई और फिर इसने देखा इसके लंबे सुनहरे बालों में एक लड़ी थी, मोतियों की लड़ी, जैसे एक मोटी सी लट में जुड़े सिरे तक सफ़ेद मोती पिरो दिए हों। इसके बाल कमर तक गिरते थे, मगर मोतियों की लड़ी कांधे व कोहनियों के वस्त में ख़त्म हो जाती थी। हम खुशफहम नहीं हैं मेम साहब, मगर आप हमें मजबूर कर रही हैं कि आपके साथ ज़बरदस्ती की जाए। बंदूक बरदार जैसे जब्त खोकर आगे बढ़ा। रामनाथ ने घबरा कर सामने आना चाहा, मगर बंदूक की नाल ने इसके कदम रोक दिए और इससे पहले कि वो राहसन बग्घी तक पहुँचते, बेदी के जंगल ने वो भारी आवाज़ सुनी, नादिर। सबने यहाँ तक कि रामनाथ और बग्घी में बैठी लड़की ने भी चौंक कर राहज़नों के अक़ब में देखा, जहाँ वो घुड़सवार अपने साथियों से मुखातिब था। क्या? बंदूक बरदार, जिसका नाम गालिबन नादिर था, हैरत से पलटा। इन्हें जाने दो। नादिर को झटका लगा, मगर मैंने कहा ना, इन्हें जाने दो। इसकी आवाज़ अब धीमी हो गई थी, मगर जंगल के सन्नाटे ने महसूस किया था कि इसमें दबाव या गुस्सा भी था। कैसे जाने दूँ? जेवर देखा है तुमने? नादिर तिल मिलाकर बड़बड़ाया। चंद लम्हे खामोशी छा गई, फिर घुड़सवार और भी मध्यम बोला, इसे जाने दो नादिर, ये बेली राजपुतान की मलका है, इसे जाने दो। फिर वो रुका नहीं, घोड़े की लगाम खींची और इसको एड़ लगा दी। सफ़ेद घोड़ा अपने सवार को पीठ पर लादे दौड़ता हुआ जंगल के बीच दरख्तों में गुम हो गया। इन तीनों ने एक लम्हे के लिए एक दूसरे को देखा और फिर अगले ही पल अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर इन्हें इसके पीछे दौड़ाते निगाहों से ओझल हो गए। मगर जाते समय वो देख चुकी थी
कि नादिर की छोटी छोटी आंखें गुस्से और नागवारी से भरी थीं। रामनाथ ने गहरा सांस लिया और इसे देखा। वो जैसे किसी सोच में गुम ढोल के गुब्बार को नीचे बैठता देख रहा था जो घोड़ों के कदमों ने उड़ाया था। अगर ये इल्म ना होता कि आप फरंगी हैं तो हमें ना रोकते मालकिन। निगाहें झुकाए रामनाथ ने अदब से इसे इसकी गलती का एहसास दिलाया। वो कुछ सोचती दूर जंगलों में देखती रही। रामनाथ वो जो मुड़कर आगे नशिश संभालने जा रहा था पुकार पर वापस पलटा। जी मालकन, ये लोग कौन थे? राहजन थे मालकन। इसने बेख्तियार निगाहें चुराईं। बेशक, मगर थे कौन? मैं कुछ नहीं जानूं मालकन। कोचबान ने हाथ जोड़े। बेशक, मगर वो जो घोड़े पर था इसका नाम क्या था? वो अब भी पुरसुकून थी। मैं कुछ नहीं जानूं। वो तलखी से मुस्कुराई। जाने दो रामनाथ, जैसे तुम्हें वाकई इल्म नहीं। और सुकून से पीछे होकर बैठ गई। वह सर झुकाए हाथ जोड़े वापस जाने लगा जब इसे अपने अकब से इसकी आवाज़ सुनाई दी। मैं जानती हूँ वो कौन था। रामनाथ, वो हैरत ज़दा सा पलटा। अंधेरे में मध्यम चांदनी में भी वो इसका चेहरा देख सकता था जिस पर वही तल्ख मुस्कुराहट थी। कौन था मालकन? वो बदर गाजान था। मैं जानती हूँ। इस वाक़े की खबर गांव में किसी को ना हो। अब गाड़ी चलाओ। मैं सुबह से कबल हवेली पहुँचना चाहती हूँ। पर्दा आगे डाला गया और दरवाज़ा अंदर से बंद हो लिया। रामनाथ हैरत छुपाता सर हिलाकर हुक्म की तामील करता आगे अपनी जगह पर वापस आ गया। बग्गी एक दफ़ा फिर खस्ता हाल सड़क पर दौड़ने लगी और फिर जब सड़क ख़त्म होकर कच्चा रास्ता शुरू हो गया इससे लम्हे पो फटने लगे। सुबह की पहली किरणें बेली राजपूतां के खेतों पर गिरने लगीं तो बग्गी में जुते अरबी घोड़े बड़े फाटक के सामने रुके। वहाँ मजमा सा लगा था। कोचबान रामनाथ फुर्ती से नीचे उतरा और सुरात से सीढ़ियाँ निकाल कर दरवाजे से लगाई और दरवाज़ा खोला। पर्दा अंदर से इसने खुद हटाया और पाँव बाहर निकाल कर सीढ़ी पर रखा। इसकी जूती के सुनहरे पुखराज रोशनी में चमकने लगे। सफ़ेद हैट इसने सर पर रख लिया था। कोचबान अदब से पीछे हट गया। वो नज़ाकत से जीने उतरती नीचे आई जैसे पानी पर चल रही हो और सामने खड़े दोनों अफराद को अपनी जानिब देखते पाया। इनमें से एक वर्दी में मलबूस गांव का सब इंस्पेक्टर था और दूसरा सूटेड बूटेड ढलती उम्र का फरबही माइल कंपनी बहादुर का कोई अफसर। फरंगी अफसर ने अपना हैट उतार कर झुककर गुड मॉर्निंग कहा। इसकी तेवरी चढ़ गई। सब इंस्पेक्टर ने भाप कर कुछ कहने को लब खोले मगर साहब बहादुर शुरू हो चुका था। आप यकीनन इंग्लिस्तान से आई हैं। पहली दफ़ा आपको इधर देखा है। मेरा नाम जॉन कार्लस है। मैं ज़िला का नया डिप्टी कलेक्टर हूँ। मुझे यहाँ तैनात हुए आज तीसरा रोज़ है। माया राज, ये लेडी। सब इंस्पेक्टर मुनमुनाया मगर जॉन कार्लस ने हाथ उठाकर रोक दिया। मुझे बात करने दो। थानेदार, ये मजमा क्यों लगा है इधर? वो दोनों हाथ से अपनी मैक्सी पहलू से उठाती बेजार सी खड़ी थी। इसका इशारा ईद की हवेली के फाटक के साथ खड़े हजूम की तरफ था। ओ माई लेडी, आपकी उर्दू कितनी साफ़ है। मुझे फ़ारसी की शुद्ध बुद्ध भी है मिस्टर कार्लस, मगर ये मजमा क्यों इधर लगा है? कल राजपूता की हवेली में हादसा हो गया। हादसा? कैसा हादसा? वो चौंकी। आग लग गई थी मेहमान खाने में। कोई नुकसान तो नहीं हुआ डीसी साहब? तो नहीं, बस ठाकुरों का लड़का मौके पर ही जल के मर गया। कौन? ठाकुर रघुनाथ का बेटा गोपाल? नहीं, वो दूसरा लड़का जो रघुनाथ का भतीजा था शेखर। वो बेख्तियार एक कदम पीछे हटी। इसकी आंखों में बेयकीनी थी। शेखर? शेखर मर गया? जी वही, ठाकुर शेखर राज। वो मज़ीद कुछ सुने बगैर तेज़ी से फाटक पार करके अंदर चली गई। जान कार्लस गर्दन मोड़ कर से देखने लगा। ये औरत कौन है? आप अब केस ने बिलाखिर सब इंस्पेक्टर को जहमत दी जो मुसलसल कुछ कहने के लिए लब खोल और बंद कर रहा था। कार्लस के सवाल पर गहरी सांस खारिज करके बोला, मैं आपको बताने वाला था। माया राज, ये लेडी शेखर है, ठाकुर शेखर राज की बीवी। कार्लस चौंका। ये माया फर्नांडिस है। सब इंस्पेक्टर ने इस बात में सर हिलाया। जी माया राज। कार्लस फिर से गर्दन मोड़े से देखने लगा जो तेज़ी से दौड़ती हवेली के अंदर जा रही थी। इसका हैट रास्ते में मिट्टी पर गिर गया था।